lambda. See, we have to find value of 2n factorial by n factorial. Right. You all know the meaning of factorial 5. If I'm writing factorial 5 means 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Factorial 10 means 10 into factorial 9 and so on. Right. And here we have to find value of 2n factorial by n factorial. So exactly what they want, right? What they want from you is we can write this 2n factorial as 2n into 2n minus 1 into 2n minus 2 up to, right, 6, 4, 3, 2, 1. Now every numbers are coming, right? So 6 into 5 into 4 into 3 into 2, right? Upon factorial n is n, n minus 1, n minus 2, up to 3, 2. Right? Right? This value of this we have to find. Is this okay, everyone? Is this okay, everyone? Yes. Comfortable? Yes. Right. Now, what I am doing, just I'm combining all the events one, right? But दो part में divide कर रहा हूँ. One part I'm writing as all the events one, and other part I'm writing as all the odds one, right? So this is 2n, 2n minus 2, 2n minus 4, up to 6, 4, 2. This is one of the part. And second part is 1, 3, 5, 7, up to 2n minus. Is this okay, everyone? Upon ये नीचे वाले को फैक्टोरियल n ही लिख के, इसमें कोई कंफ्यूजन या डाउट, राइट? एनीवन? Okay, everyone? See, from this I can take 2 common. From this I can take 2 common. From this I can take 2 common. From this I can take 2 common, 2 common, and 2 common. So 2 to the power n is common now. And what I am getting, n, n minus 1, n minus 2, up to 3, 2, 1. And this odd one will be as it was there. And this upon factorial. But we know that what the value of this one? What the value of this one? n factorial. N factorial. Right? So this is n factorial. So I can rewrite this as 2 to the power n into n factorial into 1, 3, 5, 7 up to 2n minus 1 upon n factorial. This is cancelling out. So this is 2 to the power n into all the odds. Is this okay? So this is your answer. Okay, this cannot be simplified further, right? Fine. Sir, we simplified it further, no? Sum of all person or This is the most simplified form, or you can write this as 2 into 6 into 10 into 14, but that's not required there, right? That's the complete form, you can say. Right? Okay. Arya? Arya? Any doubt, बेटा? कल जो मैंने होमवर्क दिया था? No, sir. Okay. Himaya? No, sir. Okay. Prateek? No, sir. No. ठीक है. Okay, everyone? Right? सर Yes, बेटा. मुझे एक डाउट था पूछो ना, प्लीज. सर वो 5th पेज का 8 वाला क्वेश्चन रीड क्वेश्चन करो. नंबर 8 रीड करो क्वेश्चन. A trade union committee consists of 9 persons and has to elect a chairman, vice chairman, and a treasurer. How ओके. many various combinations can there be? तो 9 choose 3 करने का है कि 9 into 8 into 7 करने का है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. तो व्हाट पर्सन इज आस्किंग कि मेरे पास ये 9%, राइट? राइट. ये 9% है टोटल.
थोड़ा सा इनको किनारे ला जाता हूँ। हाँ, ये टोटल 9 सब डिफरेंट है, तो सबको कुछ नाम दे दूं या सबको अलग अलग कलर कर दूं, राइट? यू कैन अंडरस्टैंड, लाइक ऑल आर द डिफरेंट। शर्ट का कलर है सबका ना? राइट, ऑल आर डिफरेंट। ठीक है, ये डिफरेंट 9 लोग हैं, राइट, जिनके नाम 1 2 3 4 करके नाम दे दूं, या जस्ट आई एम कलरिंग देम अप, राइट? ऑल आर डिफरेंट, राइट? वी हैव टू सेलेक्ट 3 पर्सन, 1 2 एंड 3। बट कंडीशन ये है, एक को मुझे तो चेयरपर्सन बनाना है, एक को क्या था, वाइस चेयरमैन, एंड थर्ड इज ट्रेजरर। ये 3 हमारे पास हैं, डिफरेंट हमारे पोस्ट हैं, तो डिफरेंट पोस्ट ये 9 लोगों में देंगे, राइट? हाउ टू स्टार्ट विद दिस? आपको कोई मेरे को हेल्प करो प्लीज। सर मैंने यस विल। सर मैंने 9 9 आवाज थोड़ी सी कट गई, 9C3 से सेलेक्ट किया। नहीं हम्म, 9C1 into 8C1 into 7C1 वेरी गुड। तो 9C1 into 8C1 into 7C1, why you are doing this? सर क्योंकि इन 9 पर्सन्स में से पहले हमने एक चेयरमैन सेलेक्ट कर लिया, तो अब हमारे पास 8 पर्सन्स बचे हैं जिसमें हमें एक वाइस चेयरमैन सेलेक्ट करना वेरी है। वेरी ट्रू। सेम ट्रेजरर के लिए 7 पर्सन्स बचे थे। राइट, सो 9C1 से मतलब मैंने पहले एक को सेलेक्ट किया, उसको चेयरमैन बना, राइट? जो भी पोजीशन था उसको दे दिया, फिर 8C1 से दूसरे को सेलेक्ट किया, तो तीसरे को सेलेक्ट करने के लिए तीनों के अलग अलग पोस्ट के लिए, राइट? ओके पर्सन। और यू कैन से एज यू आर सेइंग कि 9 चूज 3 से मैंने चूज किया 9 में से 3 लोगों को, एंड कि 3 जो लोग हैं उनको फैक्टोरियल 3 वे से उनको हमने पोस्ट इन अलॉट, दैट इज द सेम, right? Either we have to go with 1 by 1, or we have to select 9 choose 3, then giving the post to them. Okay, everyone? Right? Next. सर मुझे डाउट है Please. सर सेट प्रॉब्लम सेट ए का क्वेश्चन नंबर 5। Question read through, please. A mail order company offers 23 styles of ladies slippers. Each style कौन सा? fifth question. Fifth question. हाँ. सेट ए वाला वो हाँ. मेल ऑर्डर करने वाला था वो वाला क्वेश्चन पढ़ूं। हाँ, please. A mail order company offers 23 styles of ladies slippers. If each style were available in 12 lengths, 3 widths, and 6 colors, how many different kind of ladies slippers would the warehouse have to keep in stock? तो सर मुझे मतलब क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ करना चाहिए। कौन एक्सप्लेन करेगा? Full explain this part, please. Go ahead, beta. Okay, so 23 types of designs are available, and now in them 12 sizes are available, and in each of those 12 sizes 3 lengths and 6 colors in each length are available. So we can say that this is number of total what do you call boots are 12 into 23 into 3 into 6. That should be the total number of क्या है ना, different. अपनी लाइक इट्स गिवन समथिंग लाइक दिस। ये मेरे पास ऐसे ब्लॉक्स बने हुए हैं, 23 ब्लॉक्स, राइट? मैं 23 ब्लॉक्स में जो मैंने देखा कि जो अलग अलग अलग, जैसे कोई भी एक ऐप पे आप जाते हो, राइट? क्लोथ्स के ऐप हो गए, शूज के ऐप हो गए, किसी भी ऐप पे मैं गया तो डिफरेंट डिफरेंट आइफोन के साथ में दिए रहते ना, तो मैं बोला 23 ऐसे स्लॉट्स गिवन। मैं इस स्लॉट पे गया एंड मैंने इसको प्रेस करा, राइट? ये वाले स्लॉट पर गया, इसको प्रेस किया, जैसे इसे प्रेस किया तो ये वाली शूज निकल गई। अब ये शूज में व्हाट इट्स लाइक, ये शूज में मेरे पास अलग अलग 12 साइजेस दिए हुए। हाँ, एक एज ग्रुप के अलग अलग साइज होते हैं, तो ये 12 साइजेस वहां पर गिवन थे। अब 12 साइजेस में मैंने क्या कहा कि मैंने 12 साइजेस में फर्स्ट वाले साइज को मैंने प्रेस किया। जैसे मैं इसे प्रेस करा तो मेरे को इसमें 3 कलर हैं, ये दिखा,
राइट। अब ये 3 कलर थे, अब ये 3 कलर्स में से जैसे मैंने इससे प्रेस किया 3 कलर में, क्योंकि मैं जो शूज पहनता हूँ तो मेरे जो एंकल और वो जो विड्थ है ना वो थोड़ा बड़ा है, राइट। तो रनिंग शूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको शूज के विड्थ भी जरूरी होते हैं, राइट। तो जैसे इसमें प्रेस किया तो पता चला कि इसके अलग अलग विड्थ के साथ में 6 डिफरेंट विड्थ दिए, राइट। फर्स्ट आई हैव टू गो टू द स्टाइल, राइट, कौन सा है। सेकंड आई हैव टू गो टू, क्या गिवन था, जो भी है हमारे पास 12 ये थे, पहले तो 23 मेरे पास गिवन था जो है ना, इसके बाद ये 12 थे, इसके बाद दिस इज 3 एंड 6। तो व्हाट यू फील कि अब मेरे पास जब कैटलॉग बनाऊंगा कितने कैटलॉग बने होंगे टोटल? हाँ समझा सर, कितना करना पड़ेगा सबको तो करो। हाँ, एवरीथिंग विल बी काउंटेड ना, तो 23 इंटू 12 इंटू 3 इंटू 6। Is this okay? Right? Perfect. Next. Next. मुझे एक और है, वही उसका जो मैंने 8th वाला बोला था ना, उसमें 6th वाला, 5th पेज का। A business school offers course in typing, shorthand, transcription, business English, technical writing, and accounting. In how many ways can a student arrange a schedule if 3 courses are taken? वो जो आपने 5th पेज भेजा है उसका 6th वाला। एक मिनट, 6th one. या A business school offer course in typing, shorthand, right, transcription, business English, technical writing, and accounting. In how many ways can a student arrange a schedule if 3 courses are taken, right? इतने सारे कोर्सेस हैं and he has to go for 3. So anyone help me out on सर this? मैं ट्राई करूँ। एकदम करो बेटा। सर इसके लिए मैं 6C3 ले सकता हूँ। हम्म। तो 6 फैक्टोरियल बाय नहीं, 3। why you are taking 6C3? वो बिकॉज बात बिकॉज हमें 6 अलग अलग कोर्सेज गिवन है, हमें उसमें से एक बार में कोई 3 उठाने हैं, तो 3 को मैं कितने अलग अलग तरीके से मैं उसे 3 में बांट सकता हूँ वैसे। हम्म। तो इसलिए मैं C63 यूज कर रहा हूँ, सॉरी 6C3 है। बात समझो, आपको ना लाइक ओवरऑल आपकी जो स्टडी चल रहे हैं वही स्टडी पूरी तरह से चल रहे हैं। स्टडी के अलावा मान लो आपको कुछ ऑप्शंस मैं देता हूँ कि चलो फुटबॉल खेलने जाना है, एक दूसरा क्रिकेट खेलने जाना है, थर्ड गिटार प्लेइंग को जाना है, राइट, या और क्या जाएगा, वॉलीबॉल खेलना। वॉलीबॉल वॉलीबॉल खेलने जाने हैं, एंड 6 करो और दो दो ऑप्शन और। सर बास्केटबॉल। अरे हो गया, Dancing. सर वॉलीबॉल। डांसिंग डांसिंग डांसिंग, डांस तो अच्छा। डांसिंग। हाँ, Singing. Okay. क्या क्या, Sir, singing. सिंगिंग, अरे बाप रे, राइट। 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑप्शन है। इसमें से मैं आपको ऑफर दे रहा हूं कि यू कैन सेलेक्ट एनी 3। हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट एनी 3 एक्टिविटीज? 6C3. 6C3, is this okay? 6, choose 3 out of 6, you have to choose 3, but कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? रेंज पूछा है। शेड्यूल है, आगे पीछे भी हो सकता है कितने टाइम। संडे को you have to go सर for इसलिए वो right, so It's ये- 6 into 5 फैक्टोरियल से into 4 हो मल्टीप्लाई करने जाएगा। का ना। हाँ, then you have to 120 है। multiply this by factor. इसी चीज को मैं 6P3 भी लिख के कर सकता हूँ। वेरी गुड बेटा, 6P3 भी आप लिख के कर सकते हो, या 6 into 5 into 4 भी लिख सकते हाँ सर हो। वैसे और ही। हाँ सर 6 into 5 into 4. हाँ सोचने का तरीका है, हम लोगों ने अभी सोचने का तरीका ये डेवलप किया था, हम लोगों ने ये रखा था लास्ट लेक्चर में, याद करो, like when we have to go for this we have 3 options. So for first option we have 6 cases, for second 5 and 4, and this the multiplication 6 into 5 into 4. Is this okay? Okay everyone, next please. Done? Yes, sir. Okay. यस सर। अच्छा, आप में से कुछ लोगों ने होमवर्क नहीं किया, दैट्स नॉट गुड, राइट। मैं अलग से आप लोगों से बात करूंगा बाद में।
राइट, क्लास के टाइम हम ना खराब करते हुए, राइट. सी, so now this is like basic of the PNC when we were talking about, right? Arya, Katyani, Pratik, please switch on your cameras, beta. आर्या, कंफर्टेबल ना? तूने होमवर्क क्यों नहीं किया? सर मेरा थोड़ा हो गया, थोड़ा नहीं हुआ। जितने नहीं हुए वो डिस्कस करना है बेटा ना. हाँ सर। ठीक है. कतानी, सी, now what we are talking about now, right? Ki like we require ki if the numbers are given 1 2 3 4 5 6 and 7, right, we have to form a 5-digit number that must be divisible by 3. What is the condition for divisible by 3? Sum should be Sum divisible by 3 से divisible। Divisible by 3, right? 5-digit, 1 2, sir question right? We have to, how many numbers are possible? That's a 5-digit number that is divisible by 3, right? You all want to try this? Yes, sir. yes sir, yes sir. You have, रिपीटिंग अलाउड है? repetition is not allowed. You have 4 minutes for this question. Himaya, try beta, try. Very good, Prasam. Very good, Amol. Riyans, very good. Vihan, very good, beta. Abhijay, very good, very good. Anushka, very good. Parth, very good. Very good. आर्या, आंसर दिखेगी आर्या. ट्राई. सर ट्राई। May I start? एक सेकंड। Okay. sir answer भेजा Okay. Good, everyone. Good. See, may I start? आर्या, start करूं बेटा? We know that
If I'll write the number 1, 2, 3, 4 and 5, the sum will be 15, right? And अब सबको मालूम है कि 3 से डिविजिबल का केस क्या होता है, सम ऑफ द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। तो अगर 1 to 5 का सम करूंगा तो 15 आ रहा है, तो 15 इज डिविजिबल बाई 3, सो दिस मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। ये तो हो गया, राइट। मैंने ये काम कर लिया। लेकिन मेरे पास दो नंबर बचे हुए हैं, एक नंबर 6 है, एक नंबर 7। ये नंबर कितने तरीके से फॉर्म हो रहे होंगे? तो ऑब्वियसली वी नो दैट 5 into 4 into 3 into 2 into 1, राइट। फर्स्ट पोजीशन के लिए वी हैव 5 ऑप्शन, फिर 4 ऑप्शन, फिर 3 ऑप्शन, फिर 2 ऑप्शन, फिर 1 ऑप्शन, दैट्स 120। इज दिस ओके? बट नाउ वी हैव टू नंबर्स, राइट। एक नंबर 6 मेरा लेफ्ट आउट हो रहा है और एक नंबर 3 मेरा लेफ्ट आउट हो रहा है, राइट। अगर मैं 6 को रिप्लेस करना चाहूँ तो 6 विल बी रिप्लेस विथ, राइट। 6 किससे रिप्लेस होगा? 3. वेरी गुड, 3 4 5, राइट। तो यहां से एक नंबर, सेकंड नंबर जो मेरा फॉर्मेशन हो रहा होगा वो इससे होगा, राइट। इसे रख देता हूं, ये फर्स्ट फॉर्मेशन था, ये सेकंड फॉर्मेशन है। नाउ 7 के लिए वी कैन थिंक इन दिस वे, राइट। व्हेन आई डिवाइड 7 by 3, द रिमाइंडर विल बी 1। When I'll divide 7 by 3, क्योंकि 7 को रिप्लेस करना है, तो किससे रिप्लेस करूं? तो जिस 7 का रिप्लेस, 7 को नंबर से रिप्लेस करूंगा जिससे रिमाइंडर सेम आ रहा हो जो 7 का आ रहा है, राइट। तो 7 का रिमाइंडर 3 से डिवाइड करने में व्हाट रिमाइंडर यू आर गेटिंग? 1. 1। तो 1 रिमाइंडर मेरे पास दो तरीके से आ सकता है, एक 1 से आ सकता है और एक 4 से आ सकता है, नहीं? तो मे बी आई कैन रिप्लेस दिस 7 with 1, so you are getting 7 2 3 4 5 ये नंबर, या दिस विल बी 1 2 3 7 5। but in these two cases you can replace this 3 to 6 also, means 7 2 6 4 5 1 2 6 4 5, राइट। ये दो केस और आ गए मेरे पास, पहले से दो केस थे, तो ये 3 4 5 6 इतने आ गए केसेस। बट क्या कहानी खत्म हो गई या कुछ और है? पहले तो ये समझ में आ गया होगा, काफी लोगों का गड़बड़ हो गया, नहीं? सर वो Okay. कौन से नंबर को कौन से नंबर से रिप्लेस करना है ये नहीं समझा। कौन सा? अगर मान लो 7 है तो 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। 1। तो अगर मैं बोलूं कि नंबर 1 2 3 4 5 का सम था वो 3 से डिविजिबल था, ठीक है, तो अब 7 जो है वो उसी नंबर को रिप्लेस करेगा, क्योंकि ये तो कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3 है, तो उसी नंबर को रिप्लेस करेगा जिससे, राइट, 7 कंपेटेबल हो। लाइक 7 को डिवाइड में 3 से करूंगा तो रिमाइंडर 1 है, तो मैं उन्हीं नंबर के साथ तो इसको रिप्लेस कर सकता हूँ जिससे पहले से रिमाइंडर 1 बच रहा हो, हाँ। राइट। वो कौन कौन से नंबर है 1 2 3 4 5 में जिससे रिप्लेस होगा ये? 1 and 4। वेरी गुड। तो 1 और 4 से रिप्लेस किया, एंड उसके 3 की जगह पर 6 जो हो सकते थे वो भी हो गए। लेकिन 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 ठहरो थोड़ा, लेकिन क्या मेरे पूरे के पूरे कैलकुलेशन हो गए या कुछ बच रहा है अभी भी? तो इफ यू विल सी 6 + 7 मेरे पास क्या आता है? 13, राइट। 6 + 7 13 आता है, एंड इसे डिवाइड, मतलब दोनों का सम जो है 6 7 दोनों को एक साथ रिप्लेस अगर मैं कर दूं, ये भी तो पॉसिबल है, तो कौन सा नंबर होगा जिससे ये रिप्लेस हो रहा हो? अब ये तो 4 से। कहानी हाथ से बहुत सारे निकल लग गई, right? 4 तो बता रहा हूँ। तो मतलब काउंटिंग करना, जो आप लोगों ने जिस तरीके से काउंटिंग किया, जिसमें बहुत लोग के गलत हो गए, राइट। जो काउंटिंग करना था वो हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, राइट। सो इस काउंटिंग को कैसे इफेक्टिवली किया जाए कि मेरी गलतियां कम, राइट। सो लेट्स सी दिस, आई एम मेकिंग अ ब्लॉक, राइट। अब ये ब्लॉक मैं बना रहा हूं 3 से डिविजिबल वाले केसेस के लिए, राइट। तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यही है। ये फर्स्ट नंबर है, दिस इज 3n + 1 का फॉर्म है, एंड सेकंड नंबर इज 3n + 2 का फॉर्म है, एंड थर्ड नंबर इज 3n + 3 का फॉर्म, राइट। कैन आई से दिस? इज दिस ओके एवरीवन? और नंबर तो 3n ही हो गया। 3n या 3n + 3 दोनों एक ही बात है बेटा, हाँ सर। हाँ। इसमें किसी को कंफ्यूजन या डाउट?
इज दिस ओके? अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 5 नंबर्स चाहिए। मेरे को 5 नंबर सेलेक्ट करने हैं सच दैट द सम मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। तो कैन आई से दिस कि मेरे को 5 नंबर अगर चाहिए, राइट, तो फर्स्ट केस तो मैं ले सकता हूं ये 2 नंबर्स एंड 1 नंबर। ये क्या हुआ? ये हुआ कि मैंने 3n+1 के 2 नंबर सेलेक्ट किए, तो दोनों में 1 आया। एंड 3n+2 के भी 2 नंबर सेलेक्ट किए, तो दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 3n+1 3n+2 विल बी 3n+3। तो ये दोनों नंबर एक दूसरे को एडजस्ट कर लिए, ये भी नंबर एडजस्ट कर लिया, और 3n+3 भी डिविजिबल है, तो ये पूरे का सम डिविजिबल होगा। ये क्लियर है? राइट। सेकंड केस क्या हो सकता था? दिस इज द फर्स्ट केस, राइट। सेकंड केस क्या हो सकता था मेरे पास कि मैंने ये 3 नंबर यहां सेलेक्ट कर दिए ये 3 नंबर हो गए 1 4 7 वाले, राइट। एंड 3 नंबर को सेलेक्ट करूंगा तो 3n+1 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 तीनों को ऐड करूंगा तो 3n+3 का फॉर्म बन गया। अब 2 नंबर अगर मैं यहां से सेलेक्ट कर लूं तो क्या ये काम बन जाएगा? यस सर। क्या थर्ड क्या केस और हो सकता है? थोड़ा सोच के कोई बताए मेरे को प्लीज। व्हाट इज द थर्ड केस नाउ? तो अगर मैंने 3n+2 लिया। 3 है ही नहीं मेरे पास। वेरी गुड, बट अच्छा हाँ। सही था। हाँ, थॉट प्रोसेस सही था, बट वो 3n+2 वाले 3 मेरे पास है ही नहीं, सो वी हैव टू रिजेक्ट दैट, राइट। और कोई? गुड और आफ्टरनून सर। yes, good afternoon. So 3c1 into 2c1 plus 3c3 into 2c2. So this will be 6 plus 1 will be 7 ऑप्शन। जो मेरे को काउंटिंग में यहाँ पर गड़बड़ आ रहे थे, देखो 6 काउंटिंग पर मैं रुक गया था, बट यहाँ पर एक्चुअल काउंटिंग के बाद आपको पता चला नहीं, टोटल मेरे पास 7 आ रहे हैं, तो 7 into factorial 5। Is this okay? Is this okay everyone? क्या समझ में आया सभी को? नहीं सर। कहाँ पर दिक्कत है जयेश? प्लीज आस्क। सर आपने ये कैसे हुआ कि 3c1 2c1 प्लस 3c3 अभी बताता 2c2? हूँ, वो ऊपर तो समझ में आ गया आपको ना, तो अभी यहाँ पर मैं दिखाता हूँ क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास ना। ध्यान से देखना, मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हाउ मेनी ऑप्शन यू हैव फॉर दिस। ये कितने नंबर्स है मेरे पास? 3 नंबर है 3 नंबर्स में तो हाउ मेनी नंबर्स यू हैव टू चूज? सर। 2। तो 3c2 और 3c1 बोथ आर सेम ना, 3 में से एक को छोड़ दिया या 3 में से 2 को ले लिया, ये ठीक है, ठीक है। राइट। हाउ मेनी ऑप्शन यू हैव फॉर दिस नंबर 3 and 6? और 2 ऑप्शन है 2 options. How many options you have to choose? सर। 2 ऑप्शन। So 2c1 is for that. क्या बोलता है ये? राइट। सेकंड वाले को देखो, हाउ मेनी ऑप्शन यू हैव फॉर 3n+1? 3। हाउ मेनी नंबर्स यू हैव टू चूज इन द फॉर्म ऑफ 3n+1? 3 3। 3c3, right? How many option you have for 3n+3? 2, you have to choose 2. What is the value of 3c2 or 3c1? That is 6. 3 into 2 will be 6. These two are 1 1, so this is 1, so total number will be 7. Is this okay? Oh, Right. सर एक बार वापस वो 3c3 और 2c2 वाला क्या समझा दोगे? 3c3 and 2c2। 3c3 का मतलब हुआ मैंने 3n+1 के तीनों नंबर ले लिए, हाँ ठीक है। और 2c2 का मतलब हुआ मैंने 3n+2 के 2 नंबर ले लिए। अगर मैं ऐड करूंगा 3n+1 वाले 3 नंबर, तीनों का सम क्या आएगा? क्योंकि रिमाइंडर तो 1 1 1 है, तो तीनों का सम तो 3 रह जाएगा, और ये 3 से डिविजिबल है। हाँ मतलब वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। वेरी गुड। अब 3n+3 वाले 2 नंबर लूंगा तो वो भी मेरे 3 से डिविजिबल ही जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, समझ ओवरऑल ये नंबर 3 से डिविजिबल, समझ गया। राइट। इज दिस ओके एवरीवन? राइट। या अगर आप बोलो तो मैं इसे अलग से काउंटिंग से भी आपको एक बार दिखा सकता हूं। ये प्रॉपर मेथड होगा जो वो ये है, राइट। और जो भी आ जाए आपके पास, ये प्रॉपर मेथड जो होगा वो ये रहेगा आपके पास। इज दिस ओके एवरीवन? Yes, sir. क्लियर? जल्दी से इसको नोट करें, तो फिर मैं आपको एक ना इस पे क्वेश्चन एक दे के दिखाता हूँ, राइट। नोट इट डाउन।
सर कोई और मेथड नहीं है क्या इसकी? एकदम है ना बेटा। इस मेथड को पहले समझते हैं, दूसरा मेथड भी बता दूंगा। इसमें कहाँ पर दिक्कत जा रही है वो बताओ। नहीं सर, बस थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ वो तो रहेगा, जो डिफिकल्ट है उसको हम लोगों को पूरे एफर्ट लगा के समझना है ना। दूसरे मेथड भी मैं बता दूंगा, हाँ दूसरे मेथड भी बता दूंगा, बट इसे भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सर आप एक और बार समझाओगे? एकदम समझा दूंगा बेटा, नोट करो फिर समझाता हूँ अभी तुरंत ना। सर आपने वो 3C2 के बाद 2C1 लिखा है ना? हाँ अभी समझाता हूँ, अभी समझा, जस्ट नोट डाउन, फिर मैं एक बार ब्रीफ करूंगा, क्योंकि नोट करने से होगा क्या ना कि लिटिल बिट यू नो कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहे हैं, क्या चीजें चल रही हैं, राइट। दैट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। Okay, done everyone? Vihan, Yes, sir. done better? See, basics are there, right? First, you have to understand the numbers, right? So, if the number is in the form of 3n plus 1, means कौन से number ऐसे होते हैं 1, 4, 7, 10, right, 13 and so on. ये numbers हैं 3n plus 1 के form के, right? 3n plus 2 के form के number का मतलब हो गया 2, 5, 8, right? 11 and so on, right? Digits में number है तो वो थोड़े से और concise हो जाएंगे। And 3n plus 3 के form का number है 0, 3, 6, 9, 12 and so on, right? Right? अब मैं अगर चाहता हूं कि मुझे डिविजिबल बाई दो नंबर सेलेक्ट करने हैं, वो डिविजिबल बाई 3 हो जाए। क्या दो नंबर, दोनों के दोनों नंबर इस फॉर्म के सेलेक्ट करूंगा तो दोनों का सम क्या डिविजिबल बाई 3 होगा? नहीं। वेरी गुड, मतलब ये दो नंबर यहाँ से नहीं सेलेक्ट हो सकते, केवल दो नंबर सेलेक्ट करने हो, राइट। तो ये गलत हो जाएगा, राइट। क्या मैं दोनों नंबर 3n plus 2 के फॉर्म का सेलेक्ट कर लूं, क्या ये डिविजिबल बाई 3 होगा? नो सर। वेरी गुड, ये भी नहीं होगा, राइट। क्या मैं दोनों नंबर 3n plus 3 वाले फॉर्म के सेलेक्ट कर लूं, क्या ये डिविजिबल होगा? यस सर। वैसी बात है, होगा, मतलब ये सही रहा। अब एक एक नंबर सेलेक्ट करता हूँ। एक नंबर 3n plus 1 और एक नंबर 3n plus 2 ले लिया, क्या दोनों का सम 3 से डिविजिबल होगा? यस सर। वेरी गुड। Yes, क्या sir. एक नंबर 3n plus 1 और एक नंबर 3n plus 3 ले लिया, क्या दोनों का सम डिविजिबल होगा? नो सर। राइट। No, sir. मतलब कुछ स्पेसिफिक केस है जिसमें ये डिविजिबल होगा, कौन सा है वो, उसको अगर थोड़े से हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये बोल सकता हूं कि अगर एक नंबर मैंने 3n plus 1 का सिलेक्ट कर लिया तो उसके सपोर्ट में दूसरा नंबर 3n plus 2 का आना पड़ेगा, देन ओनली इट विल बी डिविजिबल। आर्या, विहान, इज दिस Yes. ओके? जो स्टेटमेंट अभी दिया मैंने बेटा, सर सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना है क्या? अगर मैंने एक नंबर कभी, मतलब अधिक भी है उसके लिए भी मैं सपोर्ट सिस्टम एक बना रहा हूं बेटा, कि अगर मैंने एक नंबर 3n plus 1 का सेलेक्ट कर लिया तो 100% सेकंड नंबर मेरा 3n plus 2 का होना ही चाहिए, देन ओनली आई कैन से कि दोनों का सम डिविजिबल बाई 3 होगा। विहान ठीक है बेटा ये बात? Yes, sir. राइट। अब यहाँ पर केस क्या हुई, यहाँ जो क्वेश्चन मेरा है उसमें बोला कि इतने नंबर नहीं है मेरे पास केवल 1, 4, 7 है, 2, 5 है एंड 0 भी नहीं है, 3, 6 इतने नंबर्स, राइट। और मेरे को कितने सेलेक्ट करने हैं? अब 2 नहीं करने हैं, मुझे 5 करने हैं। मैंने कहा 5 नंबर सेलेक्ट करने के लिए अगर मैं यहाँ से एक कर दूं, यहाँ से 3 पॉसिबल नहीं, इतने नंबर ही नहीं है मेरे पास। तो मैंने कहा ना ना ना, ये तो नहीं हो सकता, राइट। तो बोल ठीक है, सबसे बड़ा मैंने दो नंबर सेलेक्ट कर लिए। अगर मैं 3n plus 1 वाले दो नंबर सेलेक्ट कर लिए तो मेरी मजबूरी हो जा रही है क्या? क्या? 3n plus 2 लेना। हाँ, कितने कितने कितने? 3n+2 के No, दो नंबर no. दो नंबर लेने पड़ेंगे। दो दो चार हो गए, लेकिन मेरे को टोटल लेने लेने कितने थे? 5। 5 तो एक नंबर, एक हम उससे तो उठा यही लेंगे। 3n plus 3 से ले लेना। राइट। सो अब मैथमेटिकली मैं बोलूं तो मेरे पास तीन नंबर है 1, 4, 7 और मेरे को सेलेक्ट केवल दो ही करने हैं, तो मैंने कहा 3 choose 2, 3C2, इज दिस ओके?
तीन में से दो नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो उसी को लिखा 3C2। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हम लोगों ने ना, यस राइट। और उसी को मैंने दो नंबर यहां सेलेक्ट करने और दो के दोनों लेने हैं, तो व्हाट यू विल राइट फॉर दिस, 2C2, राइट। एंड यहाँ पर दो नंबर है, उससे एक ही सेलेक्ट करना है, तो व्हाट यू विल राइट फॉर दिस, 2C1. 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 Is this okay? So what is this? 3C2 is 3 only, calculation part. 2C2 is 1 only. 1. 2C1 is 1. So this is 6. अब बताओ, अब बताओ। विहान, विहान कहाँ है? विहान मेरा कहाँ है? यस सर। क्या? आर्या, समझ में आया? हाँ सर। अभिनव, इज दिस ओके बेटा? अभिनव, इज दिस ओके? ओके, यस सर। ओके, सी नाउ। अब लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। मे बी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, अगर मैं 3n+1 वाले तीन नंबर ले लूं, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका क्या मतलब है? सर, डिविजिबल बाय 3 डिविजिबल होगा। बाय 3। ना, तीनों का सम तो डिविजिबल बाय 3 होगा ही होगा, राइट। अब मेरे पास तीन सेलेक्ट करने का 3n+2 वाले ऑप्शन ही नहीं है। सर तो दो 3n+3 ले लेंगे। वेरी गुड, एकदम लॉजिकल लग रहा है, एकदम यस लॉजिकल लगा सभी को। तो फर्स्ट वाले के यस लिए आया 3C3 एंड लास्ट वाले के लिए आया 2C2। 2C की वैल्यू होती है 1, 2C2 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया 1, ये 6 और ये 1 मिला के हो गया 7। आर्या, सर, हैप्पी? हाँ सर। हैप्पी, समझ आया? सर, सच्ची? सर, हाँ हाँ, एक सवाल। तो आपने उस सेकंड वाले रो के लिए कुछ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये 2 choose 0? तो चीज लिख लो ना, 2C0 तो 1 ही हो जाता है ना बेटा, एक ही बात है, 1 केस ले रहे हैं, एक भी सेलेक्ट नहीं किया, वो तो हमेशा 1 केस है ना। जीरो कुछ कहीं से भी सेलेक्ट कर रहा हूं तो ना, 2C0 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब लिख भी सकते हो आप। ओके, एंड ये 5 नंबर्स जो आ रहे हैं, वो 5 नंबर अरेंज कितने तरीके से हो सकते हैं, वो आपने पहले ही देख के रखा हुआ। वो हो सकता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जो होता है 120। तो 120 इंटू कितने ऐसे केसेस हैं? 7 ऐसे केसेस। हाँ, आई होप सभी को अंडरस्टैंडिंग आ गई है इसकी। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, राइट। दूसरा तरीका बताऊं या कंफर्टेबल? ये कंफर्टेबल। काउंटिंग, विदाउट काउंटिंग करने के लिए ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। तरीका तो बेटा आप बोलोगे 10 तरीके अभी निकाल लूंगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में तो हमेशा आ जाने हैं तरीके। लेकिन हमारा रियल मेथड अगर पकड़ में आ गया ना, तो बड़े क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो दिस इज द मेथड जिससे आप बड़े क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अगर ये कंफर्टेबल है तो आई एम ओके, अगर नहीं तो मैं दूसरा तरीका बताऊं। विहान, सर। आर्या, सर समझ आ गया। एकदम बेटा, किमाया, प्रतीक, ओके। तो वन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, 1 2 3 4 5 6 7, we have to select 6 digits number, must be divisible by 3। ठीक है बेटा? सर कितने नंबर्स पॉसिबल है वो बताना है। हाँ बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रुको ना, एक और नंबर दे देता हूँ, 7 तक तो अभी दिया ही था ना, 8 एक और जोड़ दो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अमोघ, सर। होना चाहिए बेटा, हाँ ध्यान से। हाँ सर। हाँ सर। झील आंसर लाएगी, हाँ एकदम करेक्ट आंसर इस बार, हाँ आराम से रिलैक्स होके।
पर ये इजी है। हाँ, वैसा भी इजी होता है, टफ क्या होता है। सर सही है क्या? अभी चेक करता हूँ बेटा, अभी लग तो रहा है। अरे सर 1 0 कम डाल दिया, 1 0 कम डाल दिया। हाँ सर अब ठीक है क्या? अभी देखते हैं बेटा। सर आपको भेजा आंसर। अभी देखते हैं। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छा। वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड बेटा। अमोघ, विजय, सर कर रहा हूँ। हिमाया, विहान, ओके, शुड आई स्टार्ट? शुड आई स्टार्ट? सर वो 3n+1 में लाइक जो टेबुलर फॉर्म है ना, उसमें कितने नंबर लेना है, कैसे डिसाइड करना है? क्या बेटा, क्या फिर से पूछो एक बार। मतलब सर आपने पहले वाले क्वेश्चन में से 147 लिया, हम्म मतलब कितने ऐसा कैसे डिसाइड किया कि 3 ही नंबर लेना है? ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 दिए हुए हैं ना, तो 8 नंबर्स को इस अब पुट करना पड़ेगा इस फॉर्म में। तो ओ, जैसे लास्ट क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 गिवन था, तो 7 नंबर को हमने पुट किया था। इस बार 8 नंबर है, तो 8 नंबर्स को पुट करना पड़ेगा। ओके सर। चलो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करूं? सर 8 मिनट्स में। कुंजय एक बार चेक कर लेना बेटा। ओके सर। इसमें मेरा ठीक है। अभी अभी चेक कर, अभी जाता। प्रतीक, जील, ओके ओके। भेज दिया। हम्म विहान, वेरी गुड। वाह वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो 3n+1, 3n+2 and 3n+3. The numbers are 1 2 3 4 5 6 सर वापस से भेजो। 7 8। हाँ बेटा, अभी करते हैं। तेरा एक बार में करेक्ट हो सकता है संजय, थोड़ा सा बेटा। हाँ, सर ध्यान। वो सी में 1 की जगह मतलब 2 की जगह 1 लगा दिया गलती। इट्स ओके, मतलब जो बोला उसको समझना। हाँ, गलत यस होने सर। की चांस ही नहीं है तेरे। हाँ, उतना तेरे पास एकदम लॉजिक है तैयार तेरे में। हाँ, कि गलती तेरी ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो कितने हैं? 6 डिजिट, राइट? तो 6 डिजिट के लिए फर्स्ट क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास? ये 3 ले लो, ये 3 ले लो। एक तो ये केस अच्छा लग रहा है क्या? हाँ सर। ये तो आई होप सभी ने लिया होगा। हाँ सर। राइट। अब
ये 3 3 ले लिया, अब 2 ये ले लूं, 2 Yes. ले लूं, और 2 ये दी 3n। ये 2 ले लूं। ठीक है, ठीक है। और क्या पॉसिबल है? सर 3n+1 के 3 और 3n+3 के 3। वो तो लिया ना शुरुआत में ही, फर्स्ट केस पे ही लिया बेटा। सर अपने पर 3n+2 का लिया ना 3। हाँ, 3n+3 के भी 3 दे सकते। ये वाला बोल रहे हो क्या? 3n+1 के 3 ले लिया, और किसी पे भी? तो 3n+3 के सिर्फ 2 ही नंबर अवेलेबल है, तो हाँ, है ही नहीं मेरे पास ना, यहाँ तो 3 ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। नहीं तो यहाँ पर मैं नहीं ले पाऊंगा। 9 में लिया था एक्चुअली। हाँ, बात समझे ना? और कोई ऑप्शन, और कोई ऑप्शन, कोई हेल्प करो मेरे को, और कोई मेरे से छूट रहा हो, कुछ कुछ लग रहा है, कुछ गड़बड़ है? सर और कुछ मिल नहीं रहा था। नहीं सर, नहीं है। मेरे को भी नहीं मिला। सही है। तो कितने कितने केसेस आ गए? फर्स्ट वाले में क्या आएगा? 3C3 into 3C Into 2C2 plus 3C2 into 3C2 into 2C2 2 2C2 तो कितने आ गए? इसके 1 केस और इसके 9 9 10 10 हो गए 10 केस। 10 into 6 factorial 720। 7200। 7200 7200। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैप फॉर एवरीवन, वेरी गुड। बहुत जल्दी, ये दिस इज वेरी टफ क्वेश्चन जो आपने पकड़ा अभी इसको, है राइट। ये आईओक्यूएम के लिए जो ये क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन है ये, राइट, जिसको आप लोगों ने बहुत जल्दी, राइट, बहुत अच्छे से पकड़ लिया। कितने लोगों का आंसर सही है? राइट डाउन यस इन चैट प्लीज। अरे वाह, वाह, बहुत लोग, ऑलमोस्ट सबका। जिनका गलत है राइट डाउन नो। पूछना चाहेगी बेटा? नहीं सर, मैंने एक एक्स्ट्रा केस ले लिया था। समझ गया ना क्या गलती हुआ था? सर मैंने एक एक्स्ट्रा केस ले लिया था, 3 के 3 नंबर्स ले लिए। ओके, ओके, ओके। सो ओके एवरीवन, राइट। तो ये डिविजिबल बाय 3 के केसेस जो मेरे पास आने थे, राइट, उस पर हम लोगों ने वर्क किया कि कैसे डिविजिबल बाय 3 होंगे। नाउ व्हाट आई एम गिविंग यू कि लाइक 1 3 5 7 एंड 9, 1 3 5 7 और 9 से बहुत सारे नंबर बनेंगे। कितने टोटल नंबर्स? 1 2 3 4 5 डिजिट के कितने नंबर्स बनने चाहिए? 120। 20 numbers. 120 नंबर्स। सब लोग 120 120 Right. Find sum of all the numbers. मेरे को क्वेश्चन ये है कि जितने 120 नंबर आएंगे ना, वो 120 का सम क्या होगा ये बताओ। सर जो पॉसिबल है इनसे जो पॉसिबल है। कितने डिजिट के सर? 5 डिजिट्स ओनली। इज दिस ओके? सर आप क्वेश्चन एक और बार समझा सकते हैं? फाइंड सम ऑफ ऑल द नंबर्स। हाँ वही बता रहा हूँ बेटा। फाइंड सम ऑफ ऑल द नंबर of 5-digit number formed by the digits 1 3 5 7 and 9. रेपिटेशन अलाउड नहीं है ना? हाँ, रेपिटेशन अलाउड नहीं है ना? repetition not allowed. हाँ वही पूछेगा सर। repetition की जरूरत नहीं है अभी। अच्छा, मैं वेडनेसडे को एक लेक्चर सोच रहा हूँ लेने का, अगर आप लोग फ्री हो तो यू ऑल कैन, Yes. जिसमें मैं नंबर सिस्टम जो है उनका बेसिक से लेके पूरा एक बार टीच करना चाह रहा हूँ। मतलब 3 आवर्स के लेक्चर में एक साथ में टीच करना चाह रहा हूँ। ठीक है सर। कितने बजे? मैं टाइमिंग वगैरह आप लोग को बता दूंगा। हाँ, शायद आगे के लिए, मतलब बहुत छोटी छोटी बातें होती है तो सबको एक जगह पर एक साथ कर लूंगा तो शायद आप लोगों को आगे के लिए आसान हो जाए। राइट, सो लेट्स सी, कुछ प्लान करूंगा बीच बीच में इसी तरह से आप लोगों के लिए ना। सर मेरा आंसर बहुत अजीब आ रहा है। हाँ, आंसर बहुत अजीब आ रहा है। आंसर सर तो कुछ बहुत तो बड़ा चाहिए। नहीं, सम ऑफ ऑल द नंबर्स। सर सही है क्या? हाँ, ये कुछ सही जैसा तो लग रहा है।
सर इसमें वही करना है कि हर एक प्लेस वैल्यू करके निकालना है क्या? हाँ सही है तब शायद। सर मेरा करेक्ट है? हाँ गड़बड़ लग रहा है बेटा। ठीक ठीक ठीक। Should I? सर थोड़ी देर बस। Okay. वेरी गुड जील। एक बार कैलकुलेशन को ध्यान दे दो बेटा, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ होने के चांस लग रहे हैं। ठीक है, आप सही है। फर्स्ट वाला जो डिजिट आ रहा है ना वो थोड़ा गड़बड़ लग रहा हाँ ठीक है। है। See, let's start. See, what we have to do, right? We have to form 1, 2, 3, 4, 5, 5-digit number, right? In this 5-digit number, just I'm concentrating for unit place. I'm putting a number 1, 3, or 5, one of the number I'm putting there. So, how many options we have for these 4 places? Right, we have 4, 4, 3, 2, 1. 1, right? So 1 at unit place is coming 24 times. Can I say this? All the numbers are coming 24 times. Very good. So 3 is again coming 24 times, 5 is coming 24 times, 7 is coming 24 times, 9 is coming 24 times. So sum of the digits at unit place will be 10, 10, 25. 25 into 24. Right. Same for all. This will be what? 600. Right. But we know that as this is the sum of unit place. So sum of 10th place will be, now sum of 10th place will be same 600. 6,000. Right. Sum for 100 place will be, right? 100 place 600 into 100. वही सर 1000 हो जाएगा फिर। 1000 हो जाने हैं। 10,000. And then 600 into 10,000. Right. So I have to find sum of this. इसी के sum निकालने मेरे को। So 600 is common out, and this is 1 plus 10 plus 100 plus 1000 plus 10,000. So this will be 600 into 1, 1, 1, 1. कितने बार? 1, 2, 3, 5. 5 times. So what is this coming? 6, 6, 6, 6. 6. 0, 0. Is this okay? 0, sir. Double zero. Yes, sir. 0. Right? Is this okay, everyone? Yes. Simple one, na? Yes. Yes, sir. What if? Is this okay, everyone? Yes, sir. थोड़ा सा बना सकते हो? कहाँ पर बेटा बोले? कौन सा स्टेप? What the sum of 10th place? Sum of 10th place. See,
तेरे पास वो आपने 24 कैसे निकाला बता। अच्छा 24 कैसे निकाला? वन मैंने प्लेस कर दिया यूनिट प्लेस पे, राइट? तो अगर वन प्लेस हो गया तो मेरे पास कौन कौन से नंबर बच गए? 3, 5, 7, 9। 7, 9। ठीक है, ये 4 प्लेसेस में मुझे प्लेस करने हैं। कितने तरीके से प्लेस हो सकते हैं? 4 पहले 4 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये होता है 24। वही मैंने 24 लिखा, राइट? ये क्लियर है? ओके सर। बट 3 को मैं उसी प्लेस पर रखूं तब भी यही 24 टाइम्स आएंगे। जब 5 को रखूं, 7 को रखूं, 9 को रखूं, इसलिए सबको एक एक करके वहां रख के सबका सम ले लिया। ओके सर। ये यूनिट प्लेस के लिए था। जब 10th प्लेस पर मैं गया तो 10th प्लेस पर मैं बोला कि यही जितने नंबर्स है सम तो सेम आ रहा है, बट इंटू 10 भी होने चाहिए मेरे पास, इसलिए उसके लिए हमने इंटू 10 कर दिया। 100 के लिए 100 प्लेस के लिए इंटू 100, 1000 के लिए 1000, एंड देन सबका सम निकला। ओके ओके सर। श्योर? हाँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये नोट कर लिया आपने बेटा? हाँ सर। राइट, सो मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं, बहुत अधिक नहीं बट थोड़ा सा। देखिए आप कैसे उसको टैकल करते हो। 0 2 सर कंफर्म थोड़ा सा है ना? एकदम थोड़ा सा। 1 2 3 4 5। Find sum of all the 5-digit number formed by the digits 0 2 4 6 8. मिस हो गया मेरा। सर यहाँ पे भी रिपीटेशन नहीं ना? रिपीटेशन नहीं बेटा, जब तक बोला ना जाए रिपीटेशन नहीं। बात चालू नहीं होगा। हाँ, रिपीटेशन तब तक नहीं होगा बेटा जब तक बोला ना जाए रिपीटेशन इज नॉट देयर। हाँ ओके। छोटी सी ट्विस्ट है, दैट ट्विस्ट वी हैव टू टैकल, राइट? भेज दिया सर। अभी चेक करते बेटा। सर आपने ट्विस्ट किया था, हम्म मतलब गलत है सर। अभी देखते हैं। सर इसमें भी सेम करना है ना पिछले क्वेश्चन जैसा? जैसा ही है, बस एक छोटा सा चेंज है जिसको आपको। सर 0 है क्या जो? हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही। सर 0 का मतलब जो 10,000 प्लेसेस में 0 इंक्लूड नहीं करना है ना बस? वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। सर वो किया। सर भी क्या क्या आपको आंसर भेजा है? हाँ सर। अब भी चेक करता हूँ बेटा। सर सही लग रहा है क्या? हाँ लग रहा, सही लग रहा है। सर मेरे ऐसे आंसर है क्या? नहीं, दोनों का अलग अलग है। बहुत अलग अलग है। अभी देखते हैं बेटा, अभी देखते हैं, नो वरी। चलो स्टार्ट करें। सर मेरा हाँ, अभी अभी कर रहा हूँ खाते हैं। अभी 2 मिनट बेटा। सर 2 2 मिनट रहते हैं बच्चा। डन। See, so what if we have to form 1 2 3 4 5 digit number, all the sum of 5 digits?
So if unit place contains 0, 1, 2, 3, 4, this will be factorial 4. Again, 4 into 3 into 2 into 1. If this is 2, 4, 6, and 8, again, we are getting the same thing, right? So I can say 0 at unit place will be 24 times, 2 at unit place will be 24 times. So factorial 4 into the sum will be 20. So 24 into 20 is 480, right? So unit place sum is 480, 10th place, and so on. So I can say 480 into 1 times. This is the sum, but there is one problem, right? The problem is when 0 is coming on the first place, right? If 0 is coming on the first place, so this number will be 4-digit number, not the 5-digit number. So we have to reduce down all those cases when 0 is coming at the first place, right? So if 0 is at the first place, so I can say the number is 2 here, or 4, or 6, or 8. So rest of the number will be factorial 3. 3 into 2 into 1, 6 ways. So this is sum will be 20 into 6 is 120. And only the 4-digit number is there, so 120 into 1111. This is the sum of 4-digit number. And this is the sum of 5-digit number, including first place will be 0. So the answer will be 4 into 5 times minus 120 into 4 times. Is this okay, everyone? Is this okay? क्या बोलते हो? Yes, sir. Yes, sir. अब देखें आंसर 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 कितने लोग के सही रहे, देख लूं। सर चैट मैंने लाइक वो हाँ अंडरस्टैंड ना बेटा उसका, इट्स ओके नाउ, ठीक है, इट्स ओके। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मैंने पहले ही बोला कि कुछ गड़बड़ होने के चांसेस रहेंगे, बट ठीक ठीक चलेगा चलेगा, यू हैव। नाउ नाउ किसी का सही हुआ क्या? इट्स ओके, ठीक है, सीखने के लिए अभी तो हम लोग, चलेगा ना। सर मैंने ये 480 माइनस 1111 से 120 इंटू सब्ट्रैक्ट नहीं किया, मैंने कुछ और सब्ट्रैक्ट किया। अंडरस्टैंड ना, दैट सिंपल क्वेश्चन, राइट? ओके ना जयस? देख लिया था बट कैलकुलेट ही कर रहा था, तभी आपने शुरू कर दिया। अरे सॉरी सर सॉरी, वेरी सिंपल। नहीं कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। चलो next question. So this is about the numbers, right? When we have to arrange the numbers, we have to, like, if I'm giving you the numbers like 1, 2, 3, 4, and 5, right? And we have to form 5-digit numbers, find all those numbers when at least one digit repeated twice. At least one digit repeated twice. समझा नहीं। बेटा रिपीटेशन अलाउड हो गया क्वेश्चन में, ठीक है, एक तो ये। और मुझे केवल वही वाले केसेस आए हैं जिसमें कम से कम कोई नंबर 2 बार रिपीट कर रहा हो। मतलब सर कोई नंबर 2 बार आना चाहिए उस नंबर में। आना चाहिए भाई, हाँ सर 2 से ज्यादा बार भी आ सकता है ना एटलीस्ट? हाँ बेटा एटलीस्ट है ना, एटलीस्ट है, एटलीस्ट है ना, तो 2 से ज्यादा बार भी आ सकता है। सर कोई एक ही नंबर। हाँ हाँ कोई एक ही नंबर। हाँ तो एक बार वापस क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? इस क्वेश्चन में अगर फॉर्म 1 भी 2 बार रिपीट हुआ और 2 भी 2 बार रिपीट, तो भी कंसिडर करना है कि नहीं करना? करना है ना, ठीक। at least one number repeated twice. वन नंबर है ना, At least one digit repeated twice.
सर इसमें भी सेम सम निकालना है ना सबका? सम नहीं निकालना बेटा, कितने नंबर्स होंगे केवल वो निकालना। फिर आप एक बार चेक करोगे, मैं भेजना। गुड 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 गुड। तो सही है या मैं वापस करूँ? सही है क्या? सर मेरा सही। नहीं, सही हो सकता तो है। सर मेरा सही है। सही लग रहा है अजीम। सर मेरा। हम्म सर मेरा। बताऊंगा, अभी बताऊंगा बेटा। गलत लग रहा है, बताऊंगा। एक बार थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लाए ना, डोंट बी इन रैश ना, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस के साथ। डन, स्टार्ट करूं? सर एक यस 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 सर। सर। एक मिनट। सर आंसर पोस्ट कर दिया, जरा देखिए। वेरी गुड वेरी गुड, काफी लोगों का आ गया और इस बार काफी लोगों के सही आंसर हैं। वेरी गुड। सी, this will be right for every places we have. If repetition is allowed, we have five option, five option, five option, five option, five options. So total number of options will be 5 to the power 5. And without repetition, this will be 5, 4, 3, 2, 1. So this will be factorial 5. If I'll subtract both this, then 100% I'll get, क्या मिलेगा? 3005। 3005 जो आंसर है। हाँ सर वही आंसर आया। आंसर। सर तो आपने बोला क्यों गलत लग रहा है? तेरा नाम लिया था? सर मैंने प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस कर दिया। हाँ, माइनस प्लस क्यों कर दिया? प्लस किया, सब्ट्रैक्ट करने होंगे ना। 5 टू द पावर 5 में तो वो भी पूरे नंबर्स आ गए ना, जो हमारे रिपीटेशन हुए और नहीं हुए, दोनों के दोनों। अगर मैंने उसको माइनस कर दिया, राइट, सो तो जयेश, रियांश एंड पुरंजय, जील, ये चार के आंसर तो बिल्कुल सही थे। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। राइट, सो दिस इज अबाउट राइट कि लाइक नंबर्स को अगर मेरे को अरेंज करने हैं तब के लिए, राइट। एंड इफ आई एम गिविंग दिस इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स, राइट, इफ आई एम राइटिंग pencil, in how many ways we can arrange all this is pencil, pencil, in all the way, right? One, two, three, four, five, six letter words. Write down all the 6 letter words in such a way E will be ahead of P. E will be always ahead of P. देखे क्या थॉट प्रोसेस रहता है? अहेड ऑफ मतलब? अहेड ऑफ मतलब आगे। 6 डिजिट नंबर है, वर्ड है या 5 डिजिट? 6 फिर आगे मतलब पी के बाद ना। एंड मैं जो क्वेश्चंस आप लोगों को आज सेंड करूंगा वो मेरे को वेडनेसडे के पहले तक सबके सॉल्यूशन, राइट, कॉपी में सब्जेक्टिव वाइज जो सॉल्यूशन होते हैं वो मेरे को अलग से आ जाने चाहिए ना। यू हैव टू सेंड मी। वापस बताएंगे होमवर्क क्या है? वापस आ जाएगा बेटा, आपके ग्रुप में आ जाएगा, नो वरी। तो रेपिटेशन अलाउड नहीं है इसमें भी? नहीं बेटा, रिपीटेशन नॉट अलाउड।
सर भेज दिया। ओके सर भेजा आपको। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। स्टार्ट करें। उसका क्या 2 मिनट। कुछ बहुत बड़ा नंबर आ रहा है बेटा। 6 डिजिट के नंबर जो 6 वाले हैं वो तो मैक्सिमम ही बनेगा मेरा 720 ना। 6 फैक्टोरियल। विहान वेरी गुड एवरीवन। तो क्या क्या केसेस है मेरे पास, लेट्स स्टार्ट करूं। हो गया संजय। सर 1 मिनट। अच्छा अहेड ऑफ मतलब कंटिन्यूअसली आगे। ओह कहीं भी हो सकता है ना बेटा। अहेड का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट ही केस के मैंने ये दे दिया, पी अगर फर्स्ट पोजीशन पे, सिमिलरली पी को अगर मैं सेकंड पोजीशन पे ला दूं, पी को अगर मैं थर्ड पोजीशन पे ला दूं, पी को अगर यहां ला दूं, पी को अगर यहां ला दूं, कितने केसेस बनेंगे मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुछ ऐसे केसेस बन रहे हैं नहीं। वेरी सर गुड। मतलब ट्राई एंड एरर से करना है। ट्रायल एंड एरर नहीं बेटा, पूरे प्रोसेस से करेंगे हम लोग। देखो इसको ट्रायल एंड एरर नहीं बोलते हैं, ये होता है काउंटिंग। 2 3 4 5 6। केस फर्स्ट क्या हो सकता है कि मैंने पी को यहां रखा, तो ई के लिए 1 2 3 4 5 5 ऑप्शंस हैं, बोल सकता हूं। एंड बाकी बचे हुए जो है वो फैक्टोरियल 4 से जाएंगे, फर्स्ट केस। सेकंड, अगर पी मेरा सेकंड पोजीशन पे आ जाए, तब मैं बोल सकता हूं ई के लिए 4 पोजीशन है इंटू फैक्टोरियल 4, थर्ड केस। अगर पी मेरा थर्ड पोजीशन पे आ जाए, राइट, सो ई के लिए 3 केसेस हैं इंटू फैक्टोरियल 4, राइट। फिर 2 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल 4, ऐसा ही कुछ जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, सबको ऐड करूंगा तब 5 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 4, नहीं। सर अभी आ रहा हूं बेटा, वही देखो 15 इंटू फैक्टोरियल 4 आ गया, ऊपर वाले केस में भी वही आया था, उसमें लंबी काउंटिंग थी, इसमें थोड़ी छोटी काउंटिंग हो गई, नहीं। या ध्यान से सुनना बात, ये ठीक है ना, एकदम प्योर काउंटिंग है ये, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करके मैंने काउंटिंग कर दिया, राइट। अब इसमें मैंने क्या बोला, 1 2 3 4 5 6, ध्यान से सुनना सभी लोग। मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैंने 1 2 3 4 5 6 P2 से 2 प्लेसेस सेलेक्ट किया, और उसमें 2 प्लेस सेलेक्ट करके एक में P दे दिया और एक में E दे दिया। कोई दिक्कत या डाउट? नहीं सर। उसके अलावे जो बच गए उसे फैक्टोरियल 4 से अरेंज कर दिया। कोई दिक्कत या डाउट? नहीं सर। ये आंसर आ गया बेटा आपको। ये थर्ड मेथड, बट द फोर्थ वन इज, सही है ना। सर इसमें ई पीछे भी तो आ सर सकता थर्ड वाला समझा सकते। इसमें किधर से आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे ना केसेस। कौन से केस बेटा? तो थर्ड वाले क्योंकि 6P2 सर का ई पे बाद में भी आ सकते। एक एक करके ना बोलने दो रियांशु। फिर 6P2 का जो आएगा उसमें आपको वो भी कैसे जाएंगे जिसमें ई पी के आगे हो सकता है, मतलब 6P2 से आपने 2 सेलेक्ट किया पोजीशन, ठीक है। 2 पोजीशन जो आपके पास सेलेक्ट हुआ, उन 2 पोजीशन के लिए वी कैन से दैट मेरे पास 2 बातें हो सकती है, या तो P पीछे होगा E आगे, या E आगे P पीछे होगा। लेकिन हमने केसेस तो एक ही लिया है 6P2 के बाद। 6P2 से तो मैंने केवल 2 को सेलेक्ट किया, और 2 को सेलेक्ट के लिए अरेंज मैंने एक तरीके से किया, तो मतलब E को आगे रख दिया, P को पीछे रख दिया।
राइट। तो मैंने तो कभी ई को पीछे रखा ही नहीं, तो कोई तो एक्स्ट्रा केसेस मैंने लिया ही नहीं है। तो 6p2 इंटू 4 जो प्लेसेस थे उसमें फैक्टोरियल 4 से मैंने अरेंज कर दिया। फिर 6p2 का वैल्यू तो आपको 30 इंटू 4 फैक्टोरियल आएगा, तो आपको गलत आएगा ना फिर। 3 आएगा 30/2। सर यहाँ पे 6c2 लेना चाहिए एग्जैक्टली। 6c2 क्यों लेना चाहिए? सर क्योंकि फिर हम लोग को एक्स्ट्रा केसेस अरेंजमेंट के जो 2 केसेस है वो गिनने नहीं पड़ेंगे, और पी और ई एक्स्ट्रा वो वैसे E और E बराबर, वो भी सही बोल रहा है। ई और पी के बाद स्वैप भी तो हो सकता है ना, आपने तो केस लिया है उसमें। हाँ, तो उसमें ये बात हमें समझने की है ना कि हमने जैसे 2 प्लेसेस सेलेक्ट किया, राइट। तो केवल मैं 2 प्लेसेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसको अरेंज होने के कितने तरीके, अगर आप वो लेना चाहते हो तो ऐसे करो, दिखाता हूँ। अब टोटल मेरे पास कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 है आपके पास, 6 प्लेसेस है। देखना, सबसे सिंपलेस्ट वे जो आप समझने का हो सकता है ना, ध्यान से सुनना सब लोग ना। 6 प्लेसेस में कितने तरीके से मैं अरेंज कर सकता था, पूरे अरेंजमेंट जो हो सकती वो कितने तरीके से हो सकती थी? 720। 720 सही है। कोई कंफ्यूजन या डाउट किसी को? 720 फैक्टोरियल 6 यही आ रहा है, सबको ठीक है? राइट। Yes, मैंने बोला इसे 2 से डिवाइड कर देता, हाफ ऑफ द केसेस जिसमें P will be ahead of E or half of the cases will be when E will be ahead of P. So these are the cases what you answer is required. हाफ केस तो होगा ना, आधे केस में E आगे होगा, आधे केस में P आगे होगा, तो मैंने सीधा का सीधा बोला, राइट। या फिर आप चाहो तो C से भी कर सकते हो, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूं सबसे सिंपलेस्ट तरीका आपके पास ये है, राइट। सिमेट्रिसिटी देखना, बट यहां पर अगर आप चाहते हो तो यू कैन से 6c2 से आपने सेलेक्ट किया इंटू वन क्या चीज का, व्हाट इज दिस वन, व्हाट इज दिस वन फॉर? एक वे में अरेंज करने के लिए। एक तरीके से अरेंज, क्योंकि P विल बी अहेड, E विल बी अहेड ऑफ P, तो मैंने एक तरीके से अरेंज किया, बाकी जो बचे हुए इसको फैक्टोरियल 4 से। तो अगर आप चाहो तो इसी चीज को बात समझ गए होगे, यहाँ पर जो अरेंजमेंट हो रही है उसको कैसे रोके, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करके रोक सकते थे आप। इज दिस ओके? सब एक ही बात है, वो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 मेथड मैंने किया ना, ऑल द 5 मेथड्स आर सेम। सोचने का तरीका कैसे डेवलप करें उसके लिए ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। ओके एवरीवन, इज दिस ओके? यस सर। यस। सभी को समझ में आया? राइट, बट लॉन्ग वे टू गो, बहुत सारी इसमें वर्किंग करनी है। मैं वर्क आप लोगों को भेज रहा हूं, उससे गो थ्रू करेंगे। सबसे अच्छा होता क्या है पता, आज के आज क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करना सबसे अच्छा होता है, जहां आपने आज से कल किया, क्योंकि फिर स्कूल भी कल से स्टार्ट हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि आज जो हमने किया आज के आज हमने कंप्लीट कर देना है। ये वाले जो है इस पर हम लोग बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे, जो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन को करने के 5 डिफरेंट मेथड्स देखे हैं, राइट। तो नेक्स्ट वाले में हम लोग मिलते हैं, ठीक है? ओके एवरीवन, यस सर। चलो बाय बाय। मैं बाय 5 सर, थैंक यू अंदर सर। आप लोगों को भेज रहा हूँ, राइट। चलो बाय 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 एवरीवन, बाय बाय, बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।